Hello students, today we are starting chapter 14th elements, compounds and mixture. First, who are my companions? इसमें दो ग्रुप हैं, ग्रुप A and ग्रुप B. So ग्रुप A के हमें ग्रुप B से मैच करना है. First is stainless steel. Answer is E alloy. अब ये alloy क्या होता है? It is a substance made by mixing two type of metal together. मतलब दो टाइप के मेटल को आप मिक्स कर देते हैं तो एक एलॉय बन जाता है. सो स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय. सेकेंड इज सिल्वर. सो आंसर इज एफ मेटल. अब मेटल क्या होता है? इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस जो कि यूजुअली हार्ड होता है और उससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है. थर्ड इज भजनी मिक्सचर फॉर मिलिंग. इसका आंसर है सी मिक्सचर. अब मिक्सचर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दो सब्सटेंस का. Fourth is salt. Salt, so answer is B, compound. Salt बना होता है सोडियम एंड क्लोरीन एटम से और ये कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में. सो सॉल्ट इज अ कंपाउंड. फिफ्थ, कोल. कोल इज अ नॉन मेटल. अब कोल क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन होता है एंड अपीयर्स ब्लैक इन कलर. कोल ना ही मेलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है. अब ये मेलिएबल क्या होते हैं? मेलिएबल क्या होता है? विच कैन बी प्रेस्ड इनटू डिफरेंट शेप्स इजीली विदाउट ब्रेकिंग. और डक्टाइल क्या होता है? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. सो कोल इज अ नॉन मेटल. सिक्स्थ, हाइड्रोजन. आंसर इज डी, एलिमेंट. अब ये एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक एटम है, वो है हाइड्रोजन. Now this is question 2. Write the names of elements from the following symbols. अब ये नीचे symbols दिए हैं, उसमें हमें name of element लिखना है. Symbols क्या होते हैं? Short forms होते हैं elements के. इसमें जो पहला alphabet होता है वो capital होता है और जो दूसरा alphabet होता है वो small होता है. अब हम start करते हैं. Zn is zinc, Cd is cadmium, Xc is xenon, Br is barium, Ti is titanium, Cu is copper, Fe is iron, Si is silicon, Ir is iridium, Pt is platinum. Now this is question number 3. What are the molecular formula of the following compounds? मतलब नीचे आपके compounds दिए हैं, उसका molecular formula पूछा है. अब ये molecular formula से हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है number and the kind of atoms of each element present in the molecular compound. ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हुआ? HCl. इसमें 1 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्लोरीन एटम है. इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4. इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं. सोडियम क्लोराइड, इसका है NaCl. इसमें 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन एटम है. ग्लूकोज C6H12O6. इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं. मीथेन, इसका है मॉलिकुलर फॉर्मूला CH4. इसमें 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. Now question number 4. Give scientific reasons. A. Buttermilk is churned to get butter. Buttermilk क्या होती है? छाछ. It is churned to get butter. So the reason is buttermilk has 2 components, water and fat or cream. Churning helps in separation of these 2 components. The fat or cream collects on the top as a result of churning while the remaining part is left behind as liquid. अब ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे. Hence substances are separated on the basis of their density under the influence of the gravitational force. When spun rapidly, जो lighter particles होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो heavier particles होते हैं वो नीचे settle down कर देते हैं. Hence fat की जो होती है वो lower density होती है than compared to the water. So fat हमारा ऊपर रह जाता है और जो remaining part है वो it is left behind. Now the B part. In chromatography, the ingredients of a mixture rise up to a limited height. Water rises up to the upper end of the paper. Now, answer is chromatography is the separation techniques used to separate the different components in a liquid mixture. Separation of substance by chromatography is based on 2 properties of the substance.
First, solubility of the substance in the solvent that moves up. Second, ability of the substance to stick to the stationary filter paper. These properties are different for different substances and are mutual opposite to each other. It is the reason why all the components of the mixture rise up to a limited height when water rises up to the upper end of the paper. अब ये क्रोमेटोग्राफी यूज होती है टू सेपरेट द कॉलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑन द क्रोमेटोग्राफ पेपर. और ये जो क्रोमेटोग्राफ पेपर होता है वो एक्ट करता है एज ए स्टेशनरी फेस. अब इसमें क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट सच एज वाटर इट इज अलाउड टू मूव ओवर द स्टेशनरी फेस. अब इसमें क्या होता है कि जिस कॉम्पोनेंट की लेस सॉलेबल होगा वो बहुत धीरे चलेगा, लेकिन जो कंपोनेंट ज्यादा सॉलेबल होगा वो आपका फास्ट चलेगा. तो वो कंपोनेंट होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा क्रोमेटोग्राफ पेपर पे. मतलब जो उसका पॉइंट ऑब्टेन होगा वो मोर सॉलेबल कंपोनेंट का ऊपर होगा और लेस सॉलेबल कंपोनेंट वो धीरे चलेगा, तो उसका जो पॉइंट ऑब्टेन होगा वो नीचे होगा. Now comes question C. A wet cloth is wrapped around a water storage container in summer. मतलब एक वेट कपड़ा रैप क्यों किया जाता है अराउंड अ वाटर स्टोरेज कंटेनर समर सीजन के दौरान? Answer is a wet cloth is wrapped around water container in summers to keep the container and the water inside it cool. The water present in the cloth evaporates and along with that water the heat also evaporates, thus keeping the container and water cool. इसका ये मतलब है कि हम क्यों रैप करते हैं वेट क्लोथ अराउंड अ कंटेनर समर सीजन के दौरान, क्योंकि जो मॉइस्चर है उस वेट क्लोथ का वो एवोपरेट कर जाता है ड्यूरिंग द समर सीजन एंड ड्यूरिंग दिस एवोपरेशन इट एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द वाटर स्टोरेज कंटेनर. इस एवोपरेशन के प्रोसेस के दौरान वो हीट भी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द वाटर स्टोरेज कंटेनर. दस द वाटर इन द कंटेनर वो कूल कर जाता है. हेंस यही रीजन है कि वेट क्लोथ रैप किया जाता है समर सीजन के दौरान. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल्स का. फिजिकल प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. अब मेटल है दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड वायर्स, और नॉन मेटल दे कैन नॉट फॉर्म शीट्स और वायर्स. मतलब अगर हम हीट करेंगे तो मेटल तो आपका शीट और वायर में बदल जाएगा लेकिन नॉन मेटल नहीं बदलेगा. फिर सेकेंड है सोनोरिटी. मेटल्स आर सोरोनस, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग. मतलब अगर उन्हें मारेंगे तो टक 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 की साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं नॉन सोरोनस. कंडक्शन, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू. अब मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which they can move from one atom to the other atom easily. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड होते हैं, मतलब उसमें मूव नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन्स. सो वो नॉन मेटल्स अलाउ नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. Now comes the difference between mixture and compounds. अब mixture और compounds में क्या difference होता है? First, mixture it is obtained by the physical combination of any two substances, whereas compound it is formed when two or more substances chemically combined in a fixed ratio. Second, the composition of the constituents present in a mixture is not fixed, whereas in compound the composition of elements present in a compound is fixed. Third, it displays the property of all of its constituents, whereas in compound it may or may not show the properties of its constituent elements. Fourth, the constituents of a mixture can be separated using physical method, whereas in compound the constituent elements of a compound can be separated only by the chemical methods. अब ये मिक्सचर में क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके केमिकली ज्वाइंट नहीं होते, लेकिन कंपाउंड में आपके केमिकली ज्वाइंट होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो. मतलब उनका एक रेशियो होता है जो फिक्स होता है. अब मिक्सचर में क्या होता है कि हर सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, लेकिन ऐसा आपका कंपाउंड में नहीं होता. जो सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है देन द एलिमेंट्स विच इज मेड अप ऑफ.
उसके बाद जो मिक्सचर होता है उसमें क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट को आप सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन हो गया या एवोपरेशन हो गया, लेकिन आपका कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, उसमें आपके केमिकल मेथड से ही आपके एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ कम्स द सी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। First point, atoms are the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction, whereas molecules are smallest particle of an element or compound which exist independently. Second, they do not break up during chemical reaction, whereas molecule they break up during chemical reactions. Third, they may or may not exist in free state, whereas molecules they exist in free forms. अब atoms of few elements जैसे नोबल गैस है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं एंड ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती हैं। लेकिन एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है कि इसका बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन मोस्ट केसेस एटम्स टेंड्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटम की एक टेंडेंसी होती है गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ फुल इलेक्ट्रॉनिक शेल विच इज मोर स्टेबल। अब इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन के दौरान ब्रेकअप नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत ही छोटी एंटिटी है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेयरएज मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते हैं। और जो एटम्स होते हैं ये फ्री स्टेट में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और वेयरएज मॉलिक्यूल्स हमेशा एक फ्री फॉर्म में मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फ्यू एलिमेंट्स हैं जैसे नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये केमिकली अनरिएक्टिव हैं और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, वेयरएज मोस्ट एलिमेंट्स के एटम केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ पार्ट डी, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन एंड बाय सेपरेटिंग फनल। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन का और सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल का। फर्स्ट, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, whereas in separation by separating funnel, this method is employed for separation of two immiscible liquids. Second, it is based on the difference in the boiling point of two liquids, whereas in separation by separating funnel, it is based on the difference in the densities of the two liquids. अब सबसे पहले हम समझेंगे सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन में क्या होता है कि इट इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व कर जाते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल एंड वाटर। और इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि मिक्स वेल नहीं करते, जैसे आपका ऑयल एंड वाटर। अब सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन कहाँ एम्प्लॉय होता है, जहां पे दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे आपका अल्कोहल एंड वाटर। और सेपरेटिंग बाय सेपरेटिंग फनल कब होता है, जब आपके दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपको अलग करना होता है, जैसे आपका ऑयल एंड वाटर। अब सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स जो लिक्विड के होते हैं उन्हें वेपराइज किया जाता है, कंडेंस किया जाता है और आइसोलेट किया जाता है। द मिक्सचर इज हीटेड और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले एवोपरेट कर जाता है और वो कलेक्ट कर लिया जाता है एक लिक्विड स्टेट में, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेपरेटिंग फनल की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो लाइटर लिक्विड होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो अपर लेयर बना लेता है और जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो लोअर लेयर बना लेता है इन द सेपरेटिंग फनल। अब उसका जो स्टॉप कॉक है फनल का, उसको ओपन किया जाता है बहुत धीरे से टू कलेक्ट द लोअर लेयर, मतलब हैवियर लेयर, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। नाउ कम्स क्वेश्चन 6, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने वर्ड्स में आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट, हाउ आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, मतलब जो सिंपल मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे कॉम्पोनेंट को सेपरेट करते हैं। ए, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन. Distillation and separating funnels are used in separation of liquid mixtures. Distillation is a method which is used for separating two miscible liquids. It is based on the difference in the boiling point of the two liquids. Distillation can be either simple or fractional.
Simple distillation can be used for liquids which have huge difference in their boiling points, whereas fractional distillation is used in case of liquid which have close boiling points. Distillation can be used in the production of gasoline, distilled water, xylene, alcohol, paraffin, kerosene apart from separating mixtures. अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल मेथड्स बताए गए हैं सेपरेटिंग मिक्सचर्स के। तो पहला आता है आपका डिस्टिलेशन एंड बाय सेपरेटिंग फनल्स। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्टिलेशन को डिस्कस करेंगे कि डिस्टिलेशन आपका क्या प्रोसेस होता है। इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं सेपरेटिंग दो मिसिबल लिक्विड्स को। मिसिबल लिक्विड्स जैसे कि हमें पता है जो कि आपस में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टिलेशन दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड फ्रैक्शनल। अब सिंपल क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है, जहां पे लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, जैसे अंदाजन 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हम उस केस में यूज करते हैं जाके लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली क्लोजर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सिंपल डिस्टिलेशन होता है उसमें रेपिटेशन की जरूरत नहीं होती, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको रिपीटेशन प्रोसेस होता है टू गेट द प्योर कंपोनेंट। और सिंपल डिस्टिलेशन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें 2 फ्लास्क और एक कंटेनर ही चाहिए होता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें एक कॉम्प्लेक्स अपरेटस की जरूरत होती है जिसमें फ्रैक्शनल कॉलम भी जरूरत होता है। अब ये सिंपल डिस्टिलेशन में क्या हम कर सकते हैं, जैसे आपका सी वाटर का प्यूरिफिकेशन है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है जैसे क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। Now by separating funnels. Separation using separating funnels is used in case of immiscible liquids. It is based on the difference in the density of two liquids. It can be used in separation of oil from water, etc. Two different type of immiscible oils, etc. अब ये सेपरेटिंग फनल का क्या कंसेप्ट है कि ये सेपरेशन जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, इमिसिबल कौन से होते हैं, जो इजीली मिक्स नहीं करते, उनको सेपरेट करने के लिए होता है। और ये बेस्ड होता है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द टू लिक्विड। तो मतलब जिसकी डेंसिटी कम है, मतलब जो लाइटर लिक्विड है वो अपर लेयर बना देगा और जो ज्यादा डेंस लिक्विड है वो लोअर लेयर बना देगा इन द सेपरेटिंग फनल। और उसके बाद हम एक स्टॉप कॉर्क होता है फनल की, उसको हम बहुत धीरे से ओपन करेंगे तो वो लोअर लेयर को कलेक्ट कर लेगा, मतलब जो हैवियर लेयर है, और वो सेपरेट कर देगा उसको दूसरे लिक्विड से। अब सेपरेटिंग फनल से हम कौन से लिक्विड सेपरेट करते हैं, जैसे कि ऑयल को वाटर से, या फिर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इमिसिबल ऑयल्स को। Now chromatography. It can be used to separate the colored components of a mixture on the basis of difference in the speed of the components on the chromatograph paper when dissolved in the same solvent. The absorbent paper acts as a stationary phase. It carries the component of the mixture on the paper. The mixture acts as a mobile phase and the components get separated. The components which move slowly, that is less soluble components, appear as a spot on the lower side of paper. The components which move faster, that is the more soluble component, appears as a dot on the higher side of paper. अब क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द क्रोमेटोग्राफ पेपर। ये क्रोमेटोग्राफ पेपर आपका एक्ट करता है एक स्टेशनरी फेस की तरह। इस प्रोसेस में हम मिक्सचर को अप्लाई करते हैं ऑन अ क्रोमेटोग्राफ पेपर, मतलब जो एक स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट कर रहा है, और एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि वाटर, और उसको अलाउ करते हैं टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेस। अब क्या होगा कि जो मोर सॉलेबल कंपोनेंट होगा वो फास्टर ट्रैवल करेगा ऑन द क्रोमेटोग्राफ पेपर, और जो लेस सॉलेबल कंपोनेंट होगा वो धीरे ट्रैवल करेगा ऑन द क्रोमेटोग्राफ पेपर। अब इसका ये मतलब है कि जो ज्यादा सॉलेबल कंपोनेंट होगा वो फास्ट मूव करेगा और उसकी जो डॉट होगी वो हायर साइड ऑफ पेपर पे होगी, और अगर जो लेस सॉलेबल कंपोनेंट होगा वो धीरे ट्रैवल करेगा तो उसकी जो डॉट होगी वो लोअर साइड पे होगी।
Now centrifugation. Centrifugation is the process where a mixture is separated through spinning. It is used to separate skim milk from whole milk, water from your clothes and blood cells from the blood plasma. अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि मोस्ट कॉमन लैबोरेटरी टेक्निक होता है जो कि यूज करा जाता है सेपरेट करना कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन द कंपोनेंट साइज डेंसिटी बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. अब क्या होता है जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है कि जो डेंसर कंपोनेंट होते हैं वो बॉटम ऑफ द ट्यूब पे चले जाते हैं टू फॉर्म अ पैलेट. अब क्या होता है जो लाइटर कंपोनेंट होते हैं वो सुपरनेटेंट हो जाते हैं, मतलब एक वो पार्ट जो कि आपका डेंसर कंपोनेंट के ऊपर रह जाता है. सो वो हमारा बाद में कलेक्ट कर लिया जाता है जैसे ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा. Now the B part. Which elements, metals and non-metals, compounds and mixture do we use in our day-to-day life? मतलब हम रोज की अपनी लाइफ में कौन से मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड्स, मिक्सचर क्या यूज करते हैं? So the answer is examples of mixture we use in our daily life are lemon and water, sugar and milk, salt and water, cereal and milk, cement, air, etc. Example of compound we use in our daily life are salt, which is NaCl, sugar, which is C12H22O11, baking powder, which is NaHCO3, vinegar, which is CH3COOH, and ethanol, etc. Examples of elements we use in our daily life are aluminium, copper, iron, silver, gold, etc. अब ये मिक्सचर्स क्या हैं जो कि दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिनकी कोई एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होती. तो इसके जो एग्जांपल्स जैसे बताए लेमन वाटर, शुगर एंड मिल्क, सॉल्ट एंड वाटर, सीरियल एंड मिल्क. ठीक है. कंपाउंड्स में जो भी हम यूज करते हैं जो कि हमें पता है जैसे सॉल्ट है NaCl, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो कि यूज होता है हमारा खाने में. शुगर भी यूज होती है, बेकिंग पाउडर भी हमारा बेकिंग में यूज होता है, विनेगर यूज होता है हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह. इसी तरह जो एलिमेंट्स हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इसके बर्तन होते हैं, सिल्वर, गोल्ड की ज्वेलरी होती है. सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ सी इन एवरीडे लाइफ वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन. सो मतलब हम डेली यूज में सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या यूज है? सो द आंसर इज वी यूज सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पस इन आवर डेली लाइफ्स. First, drying of wet clothes in the spin tub of a washing machine. Second, extraction of DNA for forensic and experimental purposes. Third, separation of blood components in medical science. Fourth, working of roller coasters in amusement park. Fifth, removal of water from wet lettuce in salad spinner. ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे सेंट्रीफ्यूगन के प्रोसेस को यूज करते हैं जिसमें कि जो टेक्निक होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की वो है सेडिमेंटेशन. इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज करता है डेंसर लिक्विड एंड पार्टिकल्स को बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डालता है और सेम टाइम जो कि हमारे लोअर डेंसिटीज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पुश हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंटर. Now comes the D part. Where are the methods of separation by distillation and by separating funnel used? Why? मतलब जो methods हैं distillation के वो और separating funnels के वो कहाँ use होते हैं और क्यों? Distillation and separating funnels are used in separation of liquid mixtures. Distillation is a method which is used for separating two miscible liquids. It is based on the difference in the boiling point of two liquids. Distillation can either be simple or fractional. Simple distillation can be used for liquids which have huge difference in their boiling points, whereas fractional distillation is used in case of liquids which have close boiling points. Distillation can be used in the production of gasoline, distilled water, xylene, alcohol, paraffin, kerosene apart from separating mixtures. Separation using separating funnels is used in case of immiscible liquids. It is based on the difference in the density of two liquids. It can be used in separation of oil from water, etc. Two different type of immiscible oils, etc.
अब ये जो डिस्टिलेशन क्या मेथड होता है, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें अल्कोहल और वाटर को। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये डिस्टिलेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये हमारा जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये सिंपल प्रोसेस होता है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें रेपिटेशन होता है। ठीक है, उसमें जो सिंपल डिस्टिलेशन में होता है वो होता है जिनमें लिक्विड्स में ह्यूज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे कि 70 डिग्री से भी ज्यादा का डिफरेंस है अगर दो लिक्विड्स में, तो उनके सेपरेशन में आपका ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज होगा। लेकिन ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है रिलेटिवली क्लोजर आपके इसके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जो सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा सिंपल टेक्निक होता है, इसमें 2 फ्लास्क और कंटेनर ही यूज होता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स अपैरेटस यूज होता है विद फ्रैक्शनल कॉलम। ठीक है, अब ये सिंपल डिस्टिलेशन हमारा यूज होता है सी वाटर प्यूरिफिकेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होता है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में। अब हम आते हैं सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स। ये यूज होता है इन केस ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो कि आपस में ठीक से मिक्स नहीं करते, जैसे कि आप ऑयल या वाटर को ले सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द 2 लिक्विड्स। इट कैन बी यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इमिसिबल ऑयल्स। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइटर लिक्विड होता है, जितना मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो अपर लेयर बना देती है, और जो ज्यादा डेंस होता है वो हमारी लोअर लेयर बना देती है इन द सेपरेटिंग फनल। अब क्या करते हैं, जो स्टॉप कॉक होता है द फनल को हम बहुत धीरे से ओपन करते हैं टू कलेक्ट द लोअर लेयर, मतलब जिसकी ज्यादा डेंसिटी है, जो हैवियर लेयर है वो हमारी फिल्टर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह वर्क करता है इन केस ऑफ 2 immiscible liquids. Now the E part. Which precaution will you take while using the methods of distillation and separation by separating funnel? मतलब जो distillation process है and separating funnel का जो process है, जो separation के लिए हम use करते हैं, उसमें precautions क्या use किए जाते हैं? So answer is precautions to be used during distillation. First, the apparatus should be set in a proper manner with all the components fitted well. Second, never heat the system that is totally closed from outside atmosphere to prevent explosion. Third, add boiling chips to reduce bumping, means rapid boiling causing the liquid to expel out of the container. Now next is control the rate of heating so that not to overheat to avoid bumping. Now precautions to be used while using the separating funnel for separation. First, the funnel should be tightly fixed to the stand in an erect position. Second, the liquid in the funnel should be left undisturbed to allow it to separate. Third, the stopper should be removed carefully without disturbing the setup. अब डिस्टिलेशन में क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए कि जो अपैरेटस होता है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए और प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए उसका। दूसरा, उसमें हीट ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहिए जो कि बाहर से बिल्कुल बंद है, क्योंकि इससे एक्सप्लोजन हो सकता है। तीसरा होता है जो बॉइलिंग चिप्स होती हैं, बॉइलिंग चिप्स क्या करती हैं, इवन बॉइलिंग करती हैं, मतलब वो इंश्योर करती हैं कि जो बॉइलिंग हो रही है वो इवन हो रही है, अनइवन नहीं हो रही। ये पोरस मटेरियल की बनी होती हैं ये बॉइलिंग चिप्स। नाउ कंट्रोल द रेट ऑफ हीटिंग, ओवर हीटिंग नहीं करना चाहिए और इस चीज को जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल रेट पे करना चाहिए। नाउ सेपरेटिंग फनल्स में क्या होता है कि फनल शुड बी टाइटली फिक्स टू द स्टैंड, मतलब इरेक्ट पोजीशन में होने चाहिए और शेकी नहीं होने चाहिए। ठीक है, लिक्विड इन द फनल शुड बी अनडिस्टर्ब, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार लिक्विड को हिलाया जा रहा है और इससे सारा कुछ एक्सपेरिमेंट इफेक्ट हो सकता है। और हमें स्टॉपर को भी केयरफुली रिमूव करना है सेटअप को बिना डिस्टर्ब किए। बच्चों, इसके साथ ही हमने लेसन नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। बाय।